کلاس 7 اسلامیات آج ہم پڑھیں گے سبق نماز جنازہ اور دیگر نمازیں۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ وہ نماز ہے جو دنیا سے رخصت ہو جانے یا مر جانے والے مسلمان کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ نماز جنازہ اور تعزیت۔ نماز جنازہ وہ نماز ہے جس میں دنیا سے رخصت ہو جانے والے مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے، یعنی اس کی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے، اس کی بخشش کی دعا کی جاتی ہے۔ اس نماز میں نہ رکوع ہوتا ہے اور نہ سجدہ۔ نماز جنازہ کسی بھی پاک صاف جگہ پر پڑھی جاتی ہے۔ کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوا، اس کے لیے ایک قرات کے برابر اجر ہے۔ قرات کے معنی ہے وزن، اور قرات سے مراد احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ہے۔ اور جو اس کی تدفین میں بھی شریک ہوا، اس کے لیے 2 قرات کے برابر اجر ہے۔ کسی نے 2 قرات کا معنی پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 قرات 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ہیں۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے مختلف انداز احادیث میں آئے ہیں۔ دنیا بھر میں مسلمان مختلف انداز سے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ نماز جنازہ میں شرکت کا ایک مقصد مسلمان کو دنیا سے اعزاز و اکرام کے ساتھ رخصت کرنا ہے، یعنی عزت اور وقار کے ساتھ رخصت کرنا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرنا ہے، یعنی اس کی بخشش کی دعا کرنا۔ جنازے میں شرکت کرنے کا ایک مقصد موت کی یاد ہے، یعنی ایک دن سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ جنازے میں شرکت کرنے والے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت کو یاد کرے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ نماز جنازہ کا ایک مقصد میت کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت بھی ہے۔ تعزیت ہوتا ہے ان کی غم خواری کرنا، ان کو صبر دینا، ان کے غم میں شریک ہونا۔ میت کے اہل و عیال چونکہ غم زدہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے پاس تعزیت کے لیے جانا مستحب ہے۔ مستحب وہ عمل ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا ہو، تاکہ ان کے غم کو ہلکا کیا جا سکے اور ان کو صبر کی تلقین کی جائے۔ مسلمان ایک دوسرے کا غم بانٹتے ہیں تو ان میں محبت اور اتحاد کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ مسلمان کی تجہیز و تکفین، یعنی اس کا کفن دفن کرنا، اور نماز جنازہ میں شرکت کا حکم دراصل مسلمانوں میں اجتماعیت اور وحدت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ قبرستان میں جانا۔ مردوں کے لیے دعا اور موت کو یاد کرنے کی غرض سے قبرستان جانا مسنون ہے، یعنی سنت ہے۔ حدیث میں قبرستان جانے کا مقصد یہ بیان ہوا ہے کہ موت کی یاد تازہ کی جائے۔ قبرستان جانے والے کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے۔ ترجمہ: اے قبرستان والو، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت فرمائے اور ہماری بھی۔ تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ قبرستان جا کر تمام مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ مرحومین یعنی مردوں کے لیے، مر جانے والوں کے لیے، اور اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ قبروں پر چڑھنا اور ان کی بے ادبی کرنا بہت بری بات ہے۔ قبرستان میں ہنسی مذاق کے بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے۔ قبرستان میں کوڑا کرکٹ یا کسی بھی قسم کی گندی چیزیں پھینکنا بہت سخت گناہ کی بات ہے۔ کسوف و خسوف کی نماز۔ سورج گرہن کے موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز کسوف، اور چاند گرہن کے موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز خسوف کہتے ہیں۔ ان نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب گرہن ہو تو امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی جائیں، جن میں لمبی قرات ہو اور سجدے بھی لمبے ہوں۔ 2 رکعتیں پڑھ کر قبلہ رو بیٹھے رہیں، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کر بیٹھے رہیں، اور سورج صاف ہونے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ ان نمازوں کو اگر جماعت سے پڑھنا ممکن نہ ہو تو انہیں انفرادی طور پر بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اکیلے بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ان نمازوں کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کے مظاہر میں تبدیلی کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اور اس سے رحم کی درخواست کی جائے۔ تہجد۔ تہجد سے مراد وہ نوافل ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک ادا کیے جاتے ہیں۔ رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز ادا کرنا افضل ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز میں 2 رکعت بھی پڑھیں، 4 بھی اور 8 بھی۔ اشراق۔
सूरज के रोशन हो जाने के बाद जो नफिल नमाज पढ़ी जाती है इसे इशराक कहते हैं। ये भी बहुत फजीलत वाली नमाज है। ये अमूमन सूरज निकलने के आधे घंटे बाद अदा की जाती है। चाश्त, नमाज़े चाश्त की कम अज़ कम 2 या 2 से ज़्यादा 12 रखते हैं। जब दिन अच्छी तरह रोशन हो जाता है तो उस वक्त चाश्त की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान नए दिन का आगाज़ करता है तो इसके हर जोड़ की सलामती पर सदका वाजिब है, यानी कि सही सलामत उसके दिन का आगाज़ हुआ। एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहना सदका है, एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सदका है, एक मर्तबा अल्लाहु अकबर कहना सदका है। अच्छे काम का हुक्म देना सदका है, बुरे काम से मना करना सदका है। और इन तमाम के बदले चाश्त के वक्त पढ़ी जाने वाली 2 रकतें काफ़ी हैं। अवाबीन, नमाज मगरिब के फ़र्ज़ पढ़कर 6 रकतें पढ़ना मुस्तहब है। मुस्तहब वो अमल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने किया। इनको सलातुल अवाबीन और नवाज़ अवाबीन भी कहते हैं। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मगरिब के बाद 6 रकात पढ़ी, इसे 12 साल की इबादत का सवाब दिया जाएगा। इस्तिस्का, वो बाजमात नमाज जो बारिश तलब करने के लिए खुले मैदान में पढ़ी जाती है, इसे नमाज इस्तिस्का कहते हैं, यानी बारिश मांगने के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज नमाज इस्तिस्का कहलाती है। तहय्यतुल वुज़ू, वुज़ू के बाद 2 रकत नफिल पढ़ना मुस्तहब है। इसे तहय्यतुल वुज़ू कहते हैं। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वुज़ू करने के बाद 2 रकत नमाज पढ़ा करते थे। इस अमल की बरकत से नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में इनके कदमों की आवाज़ सुनी थी। तहय्यतुल मस्जिद, मस्जिद में दाखिल होने के बाद अगर नफिल पढ़ने का वक्त मुयस्सर हो तो 2 रकत नमाज तहय्यतुल मस्जिद पढ़ना मुस्तहब है। नमाज हाजत, किसी हाजत को पूरा करने के लिए जो नफिल नमाज पढ़ी जाती है, इसे नमाज हाजत कहते हैं। नमाज हाजत की एक मसनून दुआ भी है जो हदीस की किताबों में मौजूद है। ये सब नमाजें हमें अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा करने और इसका कुर्ब हासिल करने के लिए हैं। कुर्ब कहते हैं अल्लाह ताला के करीब होना, उसके नज़दीक होना। हमें फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ नफिल नमाज़ों का भी एहतमाम करना चाहिए। क़यामत के दिन फ़र्ज़ नमाज़ों में जो कमी रह जाएगी वो नवाफिल के ज़रिए पूरी की जाएगी। सबक हमने पढ़ा, अब इसकी मश्क करते हैं। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। नंबर 1, मुसलमान के लिए जिस नमाज में दुआए मग़फ़िरत की जाती है इसे कहते हैं। जवाब है नमाज जनाजा। नंबर 2, कब्रिस्तान में जाने का मकसद है। जवाब है मौत की याद। नंबर 3, मगरिब की नमाज के बाद जो नवाफिल पढ़े जाते हैं इन्हें कहते हैं। जवाब है अवाबीन। नंबर 4, बारिश तलब करने के लिए जो नमाज पढ़ी जाती है इसे कहते हैं। जवाब है नमाज इस्तिस्का। नंबर 5, मस्जिद में दाखिल होने के बाद जो 2 रकत नफिल पढ़े जाते हैं इन्हें कहते हैं। जवाब है तहय्यतुल मस्जिद। मुख्तसर जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, नमाज जनाजा पढ़ने की फ़जीलत लिखें। जवाब है किसी मुसलमान की नमाज जनाजा में शिरकत करना बहुत फ़जीलत वाला अमल है। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान के जनाजे में शरीक हुआ इसके लिए 1 किरात के बराबर अजर है, और जो इसकी तदफीन में भी शरीक हुआ इसके लिए 2 किरात के बराबर अजर है। किसी ने 2 किरात का मायनी पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 किरात 2 बड़े पहाड़ों के बराबर हैं। सवाल नंबर 2, कब्रिस्तान के आदाब तहरीर करें। जवाब है कब्रिस्तान जाकर तमाम मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए और अपनी मौत को याद करना चाहिए। कब्रों पर चढ़ना और इनकी बेअदबी करना बहुत बुरी बात है। कब्रिस्तान में हंसी मजाक के बजाय अल्लाह ताला के ज़िक्र और दुआओं में मशगूल रहना चाहिए। कब्रिस्तान में कूड़ा करकट या किसी भी किस्म की गंदी चीज़ें फेंकना बहुत सख्त गुनाह की बात है। सवाल नंबर 3, चाश्त की नमाज में कितनी रकात पढ़ी जाती हैं? जवाब है चाश्त की नमाज में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात पढ़ी जाती हैं। सवाल नंबर 4,
तहज्जुद की नमाज किस वक्त पढ़ी जा सकती है? जवाब है, तहज्जुद की नमाज इशा की नमाज के बाद से लेकर सुबह सादिक से पहले तक पढ़ी जा सकती है। सवाल नंबर 5, बारिश तलब करने के लिए जो नमाज पढ़ी जाती है इसे क्या कहते हैं? जवाब है, बारिश तलब करने के लिए जो बाजमात नमाज पढ़ी जाती है इसे नमाज इस्तिस्का कहते हैं। तफसीली जवाब दीजिए। सवाल नंबर 1, नमाज जनाजा, ताज़ियत और कब्रिस्तान जाने के आदाब तहरीर करें। जवाब है, नमाज जनाजा वो नमाज है जिसमें दुनिया से रुखसत हो जाने वाले मुसलमान के लिए दुआएं मग़फ़िरत की जाती है। इस नमाज में ना रुकू होता है ना सजदा। नमाज जनाजा किसी भी पाक साफ जगह पर पढ़ी जाती है। किसी मुसलमान की नमाज जनाजा में शिरकत करना बहुत फजीलत वाला अमल है। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान के जनाजे में शरीक हुआ इसके लिए एक किरात के बराबर अजर है, और जो इसकी तदफीन में भी शरीक हुआ इसके लिए 2 किरात के बराबर अजर है। नमाज जनाजा का एक मकसद मैयत के अहले खाना के साथ ताज़ियत भी है। मैयत के अहलो अयाल चूँकि गमज़दा होते हैं इसलिए इनके पास ताज़ियत के लिए जाना मुस्तहब है, ताकि इनके गम को हल्का किया जा सके और इनको सब्र की तलकीन की जाए। मुर्दों के लिए दुआ और मौत को याद करने की गर्ज से कब्रिस्तान जाना मसनून है। हदीस में कब्रिस्तान जाने का मकसद ये बयान हुआ है कि मौत की याद ताज़ा की जाए। कब्रिस्तान जाने वाले को चाहिए कि ये दुआ पढ़े। तर्जमा, ए कब्रिस्तान वालों, तुम पर सलामती हो, अल्लाह ताला तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमाए और हमारी भी। तुम हमसे पहले चले गए और हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। कब्रिस्तान जाकर तमाम मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए और अपनी मौत को याद करना चाहिए। कब्रों पर चढ़ना, इनकी बेअदबी करना बहुत बुरी बात है। कब्रिस्तान में हंसी मजाक के बजाय अल्लाह ताला के ज़िक्र और दुआओं में मशगूल रहना चाहिए। कब्रिस्तान में कूड़ा करकट या किसी भी किस्म की गंदी चीज़ें फेंकना बहुत सख्त गुनाह की बात है। सवाल नंबर 2, फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा नफली नमाज़ों के नाम और औकात तहरीर करें। जवाब है, कुसूफ़ व खुसूफ़, सूरज ग्रहण लगने पर पढ़ी जाने वाली नमाज कुसूफ़ और चांद ग्रहण के मौका पर पढ़ी जाने वाली नमाज खुसूफ़ कहलाती है। तहज्जुद, ईशा की नमाज के बाद से लेकर सुबह सादिक से पहले पढ़ी जाती है। इशराक, नमाज इशराक सूरज के तुलू हो जाने के आधे घंटे के बाद पढ़ते हैं। चाश्त, जब दिन अच्छी तरह रोशन हो जाए तो उस वक्त चाश्त की नमाज पढ़ी जाती है। अवाबीन, नमाज मगरिब की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। इस्तिस्का, बारिश तलब करने के लिए खुले मैदान में पढ़ी जाती है। तहय्युतुल वुज़ू, वुज़ू करने के बाद 2 नफिल पढ़े जाते हैं। तहय्युतुल मस्जिद, मस्जिद में दाखिल होने के बाद 2 नफिल पढ़े जाते हैं। नमाज हाजत, किसी हाजत यानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो नफिल नमाज पढ़ी जाती है इसे नमाज हाजत कहते हैं।